हाँ जी दोस्तों, राज स्वामी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਤਜਰਬਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਅਨੁਮਾਨੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਜੋ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਐਸ ਅ ਪ੍ਰੂਫ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਢਿਲਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜੋ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲੇ। 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰਾਂ ਤੱਕ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੋਂ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜਸਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਸਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਜੋ ਮਨ ਆ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਕਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ। ਦੋਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ। ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾੜੀ ਸਫੇਦ ਆ, ਵਾਈਟ ਬੀਅਰਡ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਫੀਲਿੰਗ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। आज समझाया गया कि उस शब्द की सोजी, उस नाम की सोजी हमें कैसे मिलती है, जब उस मालिक की हम पर दया मेहर बख्शिश हो जाती है, जब हम उनके सत्संगों में जाते हैं, जब हम एफर्ट्स करते हैं, पुरुषार्थ। वो शब्द हमें उस मालिक के साथ मिलाने का काम करता है और उससे लिव जोड़ना ही, शब्द के साथ लिव जोड़ना ही सच्चा ज्ञान है। और उस शब्द नाम की सोजी हमें कैसे मिलती है, तो आप आगे फरमा रहे हैं गुरु साहब, बिन सतगुर कोई नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है कि उसकी सोजी पूरे गुरु से मिलती है। उस मालिक की बात समझाने के लिए, उस परमात्मा की उस शक्ति की बात समझाने के लिए सदगुरु हमारे दरमियान आते हैं। वो हमें समझाते हैं, वो अपनी हड्डबीती हमारे सामने रखते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। उनकी तालीम,
कोई उन्होंने ग्रंथों पोथियों से नहीं ली। वो अपना तजुर्बा हमारे सामने रखते हैं कि हम इस सच के रास्ते के ऊपर चल सकें, अपना जीवन कैसे ढाल सकें। आगे कुछ और बाणियाँ फरमाई गई कि संत सतगुरु की शरण वो हमें प्राप्त करवाए, सतगुरु के दर्शन वो हमें प्राप्त करवाए, ये उसकी दया मेहर है। जब हम सतगुरु के दर्शन करते हैं तब उनके प्रति हमारा आकर्षण पैदा होता है। जब हम उनके सत्संगों को सुनते हैं तब हमें उनके उपदेश पर विश्वास होता है। जब हम उस मालिक के आगे फरियाद करते हैं, पुकार करते हैं कि हमें अपनी शरण में रख लो, तो वो हमें किसी सतगुरु की शरण बख्श देते हैं, जिसकी शरण में आकर हम समझ सकें और नामदान प्राप्त कर सकें। फिर जब हम उनके उपदेश के अनुसार सिमरन में लगते हैं, भजन सिमरन में कमाई करते हैं, ताकि हमारी लिव उस सच्चे नाम, सच्चे शब्द से जुड़ जाए, तो ये मानसिक तौर पर हमारी सच्ची कोशिश है कि उनके उसूलों को ध्यान में रखकर जो परहेज़ वो बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं, जब हम उस पे चलते हैं तो हमारी लिव उस नाम के साथ जुड़नी शुरू हो जाती है। आगे फरमाया गया कि जब गुरु अपनी शरण बख्श दे, हमारे ऊपर दया मेहर बख्शिश कर दे, नामदान दे दे, तब हमारा उद्देश्य ख़त्म नहीं हो जाता, वो तो एक शुरुआत है। फिर हम दुनिया के विषय विकारों से मुंह मोड़ लेते हैं। धीरे धीरे हमारी ये कोशिश बढ़ती जाती है, हमें मनमुख नहीं, फिर हम गुरुमुख बनना सीख जाते हैं। जब हम उनके उपदेश पर अमल करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, उद्यम करते हैं, फिर धीरे धीरे सतगुरु हमें भी उसके काबिल, उसकी भक्ति के काबिल बना देता है। आगे एक गुरबानी की बहुत सुंदर तुक फरमाई गई। फिर कहा, आत्मा को सहज की अवस्था में लाने के लिए जप नाम, मालिक के नाम का सिमरन कर। ये जो जप नाम है, इससे उसका मिलाप होगा। तो शुरुआत होती है गुरु के बख्शे हुए नाम सिमरन से। हुजूर महाराज जी का उदाहरण दिया गया कि वो फरमाया करते थे, सिमरन को सिमरन काटता है। सिमरन का ताल्लुक याद से होता है, याद का संबंध प्रेम से होता है। जैसे जैसे गुरु के बख्शे हुए नाम सिमरन में लगते हैं, उसमें एकाग्रता आती है। हमारे मन के अंदर इस दुनिया के मोह की जगह मालिक का प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है। साथ ही हमारा मन और आत्मा, जिसका सत्ता केंद्र हमारी दोनों आँखों के बीच और मध्य में है, हमारी आत्मा मन के साथ जुड़ के इन 9 द्वारों में फंस गई है, संसार के अंदर फैली है, इस संसार के मोह में डूबी है। जैसे जैसे मालिक का प्रेम दिल में बसता है, ये आत्मा हमारी अंतर में सिमटती है और सिमरन करने से हमारी सूरत एकाग्र होती है। उसको ख्याल को सिमटाना कहते हैं कि यही चेतन सत्ता है। आँखों के पीछे यही वो जगह है जहाँ मालिक की दया धार, सूक्ष्म शब्द नाम शब्द की धुनकार धुने हैं और प्रकाश है। पर उसके साथ जुड़ने के लिए सिमटाव में आई हुई आत्मा को ठहराव में लाना जरूरी है, टिकाव में लाना जरूरी है, और उसमें किसी स्वरूप के ध्यान की जरूरत पड़ती है। किसका ध्यान करें? आगे बहुत सुंदर तुक फरमाई गई। फिर इस पे स्वामी जी का भी उदाहरण दिया गया कि उन्होंने फरमाया है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। गुरुगर की भी वाणी ली गई। अकाल मूरत है साध संगत की। संतों महात्माओं का असल स्वरूप अकाल शब्द होता है। आगे कुछ ऐसा फरमाया गया, एक और तुक फरमाई गई कि उसका ध्यान तो हमारे वश में नहीं है, हम केवल सिमरन कर सकते हैं जो सद्गुरु देता है। अब ध्यान कैसे आएगा? ये उस मालिक की अपार दया मेहर बख्शिश होती है। जब हम विश्वास रखकर उसका सिमरन करते हैं, फिर सिमरन में एकाग्रता आती है। उस सिमरन बख्शने वाले की एसोसिएशन साथ में जुड़ी हुई है। अब ऐसी अवस्था में आकर उनकी दया से, मालिक की दया से उस शब्द के साथ हमारी लिव जुड़ती है। ये आत्मा की एक सुखमयी, बहुत सुखमयी अवस्था है। गुरुघर का उदाहरण दिया गया, गुरबानी। इससे लिव जुड़ना ही उस परमात्मा के साथ प्रेम पाना है। अब जब आत्मा शब्द से जुड़ गई, शब्द में वो ताकत है आत्मा को अंदर खींचने की। यहाँ जो शब्द रूप सद्गुरु है वो आत्मा का मार्गदर्शन करता है। शब्द आत्मा को पवित्र करने की ताकत रखता है। आत्मा निर्मल हो जाती है, तब आत्मा काल और मन के दायरे से ऊपर उठ जाती है। आत्मा अपने आप को मालिक के अंश के रूप में
प्रकट करती है। आगे और भी डीपली समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया